मेरा नाम देवेंद्र सिंह भदौरिया है और मैं इस ENGO इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को मैनेज करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड इन इंडिया एंड इन अफ्रीकन कंट्रीज़। सो मेरा, जैसा रवि ने बताया कि इस प्रोग्राम्स को हम लोग 10 देशों में चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिफोर आई गो फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा कि कैसे ENGO प्रोग्राम का शुरुआत हुआ और क्यों हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सोचा और बनाया और इसको आगे ले जाने के लिए फंड्स और जो भी सपोर्ट है उसको जुगाड़ किया। ENGO, empowering grassroots organizations with ICT and There are 3.3 million NGOs in India. NGOs are a rich repository of grassroots information. However, more than 70% of grassroots organizations are not online. These same organizations do not have access to critical ICT tools in their daily work. Most NGOs depend on external funding for support. Further, NGOs could strengthen their efforts via access to digital tools. NGOs could gain further financial traction through engaging with potential external funders online. To connect the social sector, the Digital Empowerment Foundation started the ENGO program to empower NGOs with ICT tools. NGOs can use these tools to increase internal efficiency and showcase their work to funders, policymakers, governments, and large development organizations. Crucially, this includes building a free website for the NGOs. By coming online, the organization's learning cycle becomes short and comprehensive. ENGO started 3 years ago with the support of National Internet Exchange of India. Within 2 years, DEF brought 500 NGOs online. Today, ENGO is further supported by Public Interest Registry, better known as .org. DEF is not only providing domain on .org, but also complete website with regional workshops to train NGOs how to build and maintain their websites. Both DEF and .org are using ENGO as a campaign method to support .ngo. .ngo will give every NGO an online presence with a .ngo domain name. By December 2011, DEF would have developed another 500 websites. We are building 500 more with the support from .ngo and PIR. The ENGO project is already Asia-wide and is set to expand to Africa. Our goal is to have at least 2,000 NGOs online by the time the .ngo domain name is approved in 2013. DEF and .ngo are working to create an ecosystem of NGO information online, not just in India but around the globe. The ENGO program expects a network of NGOs will strengthen one another and use ICT tools to leapfrog the development cycle. इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा बता दूं। इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोगों ने 2009 में की थी और पिछले 3-4 साल में इस प्रोग्राम में हमें 2 लोगों ने सपोर्ट किया। पहला नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि भारत में .in डोमेन चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, और उस 1 साल में उन्होंने हमें 500 NGOs को ऑनलाइन करने के लिए बोला था और उसमें हम लोगों ने करीब 700 NGOs को ऑनलाइन किया था। उसके बाद इस प्रोग्राम को हमें .org का सपोर्ट मिला और उसमें हम लोगों ने within 2 to 3 years now we have more than 2,000 organizations who are online and connected through ENGO network with independent .org domain। और इसमें ना सिर्फ हम उनको वेबसाइट या कंटेंट या सब देते हैं, इसके अलावा हम उनको, जैसे कि हमने बताया कि हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं रीजनल लेवल पे। सपोज अभी मैं लास्ट वर्कशॉप मेरी 29 नवंबर की थी कंबोडिया में, नॉम फेन में, जिसमें करीब 60 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्ट लिया था पूरे कंबोडिया के प्रोविंस से। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वेबसाइट NGOs नहीं जानते हैं या बनाना नहीं जानते हैं, मगर क्या क्या
एक चैलेंजेस होते हैं एक एनजीओ को वेबसाइट मेंटेन करने में, उसको बनवाने में, उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक डेवलपमेंट एजेंसी के लिए काफ़ी सारा इश्यूज हो जाती हैं कि यार मैं टेक्नोलॉजी सीखूं या काम करूं। तो ये सारे हर्डल्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम्स को बनाया गया था। और नाउ ये ईएनजीओ प्रोग्राम एक नेटवर्क बन चुका है जो कि एक रेफरेंस वैलिडेशन का काम करता है एनजीओज़ के लिए। अगर आप ईएनजीओ के मेंबर हैं तो आप काफ़ी सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट, डोमेन, ट्रेनिंग, एनीथिंग जो भी लिस्टेड है, आपके पास ब्रोशर भी होगा। तो यहाँ पे हम 1.5 घंटे में कोई वर्कशॉप्स वैसा हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास एजेंडा हो तो आप देखिए इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है जो कि मैं एक पूरे फुल डे की वर्कशॉप में लेता हूँ। Like how ICT can help NGO operation, building a web platform, why web platform is important, social media for non-profit, content structure framework, best NGOs who are using websites and social media for their fundraising, advocacy and many other ways. Plus जैसा कि अभी इसमें वीडियो में दिखाया गया था, एक .ngo की कुछ बात हो रही थी। तो ये .ngo क्या है, इस पर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देन ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सारांश में बोलना चाहूँगा कि जो इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं ये हम पहले डिस्कस कर लें कि एक ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इन सब एरिया में, स्पेशली वेब में, स्पेशली सोशल मीडिया में या ऑनलाइन या डिजिटल होने में, तो हम ज़्यादा अच्छे से इस वर्कशॉप्स को चला पाएंगे। तो मैं रवि, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन? जिन्हें अपनी बात कहनी है वो कह सकता है, शुरू कर सकता है। 4 माइक्रोफोन दिए गए हैं और ये पूरा डिस्कशन का होगा। जैसे देव सर ने बोला है, आप अपनी बात रखिए, हमें भी समझ आएगी और आपको भी हम लोग जो हमें पता है वो बोल देंगे। ये फॉर्मेट नहीं किस किस ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जिनका की वेबसाइट नहीं है? ओके, 1 2 3 4 6, ओके, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, और कौन कौन ऐसे हैं जो यहाँ पे ईएनजीओ मेंबर हैं, जिनकी एनजीओ में रजिस्ट्रेशन है, ईएनजीओ में वेबसाइट मिला है? वेबसाइट नहीं मिला, ओके। तो मैं पहले उनसे जानना चाहूँगा कि जो लोगों का वेबसाइट नहीं है कि वेबसाइट क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, या वो चाहते नहीं बनाना। कुछ एनजीओस, मैं बहुत सारे एनजीओ से मिला हूँ, स्पेशली बिहार में, यूपी में, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वेबसाइट का मतलब है कि हमको अपना सारा फाइनेंशियल डेटा अपलोड करना पड़ेगा या हमको अपना पूरा बैलेंस शीट अपलोड करनी पड़ेगी, सो इट्स काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट आर द रियली इश्यूज, क्यों नहीं एनजीओज अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं, क्यों नहीं ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं, और हमेशा फंडिंग के लिए ढूंढते रहते हैं कि हमको फंडिंग नहीं है, हमको काम नहीं मिल रहा। बट अगर मैं बोलूं कि डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन इज ऑल्सो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, या हमसे भी अच्छा काम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रहे हैं, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है, बट उनको कोई जान नहीं पाता है क्योंकि वो उस ज़िले में या ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट्स में जाने जाते हैं। सो ये डिजिटल डिवाइड, ये बैरियर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो वो पहले बैरियर हम जानना चाहेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ हो सकता है ले जाऊं। कोई एक शॉर्ट में थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। हमारा जो संस्कार प्रतिष्ठान पूना में काम करती है, सर ने बताया था, आप भी पूना में आए थे, तभी हम लोग आपके प्रोग्राम में आए थे, लेकिन हमें पूरा प्रॉब्लम यही आया था कि इंग्लिश में जो आपको सब जो माहिती है वो पूरा देने का है,
यस तो वो देने के लिए इंग्लिश में बनाने के लिए तकलीफ हुआ था, इसलिए हम लोग साइट पे नहीं आए। तो वो जो आपका फॉर्मेट है वो हिंदी में मिला तो हम तुरंत दे सकते हैं, अच्छा अच्छा। और इंग्लिश में रहेगा तो कोई तो हमारे साथ चाहिए कि बैठ के हम लोग बना सके। ओके, धन्यवाद। मतलब रीजनल लैंग्वेज। सबको बताइए। एक सेकंड, मेरी विनंती है कि जिन्होंने बनाया है वो पहले इशू रेज करे। जिन्होंने खुद की साइट बनाई है ना, वो लोग यदि बताए कि उनकी क्या दिक्कत है तो अच्छा होगा, और फिर जिन्होंने नहीं बनाई है उनको नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे। जिन्होंने बनाई उनको किसी को बोलना है? Sir, I'm Chandrakant. I'm running one NGO that's Ekta Gram Vikas Pratishthan. We are running one project that's a night shelter. मैंने खुद की वेबसाइट बनाई आपकी, लेकिन मेरा जो ये प्रोजेक्ट है उसको जो बेनिफिशियरीज है वो है बेगर, जिसको घर नहीं है वो रात को उसको शेल्टर देना मेरा काम है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी आईसीटी से या वेबसाइट से उसको वो बेनिफिशियरी की तरफ मैं कैसे जाऊँ। Exactly. ये मेरा प्रॉब्लम। देखिए, जो आप जो जिनके पास शेल्टर नहीं है आप उनको शेल्टर प्रोवाइड कराते हो, ठीक है ना, बट वो शेल्टर प्रोवाइड कराने के लिए सपोर्ट आप कहाँ से लेते हो? आप अपने घर से तो नहीं दोगे, आप कहीं से तो सपोर्ट लाओगे, ठीक है। तो वो सपोर्ट लाने का माध्यम आईसीटी हो सकता है। आप पेपर में ऐड नहीं दे सकते हो, आप रेडियो में उन बिना शेल्टर के लोगों के बारे में नहीं बता सकते हो, टीवी में नहीं चलवा सकते हो, बट वेबसाइट पे आप उन शेल्टर्स की स्टोरी डाल के और हजारों लाखों लोगों का सपोर्ट ले सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। मेरे पास आपको बताऊं, मैं अभी होगा यहाँ पे नियाज इज हियर, उड़ीसा में भद्रक में एक बहुत छोटी सी जगह में एक ऑर्गेनाइजेशन है दिशा, उन्होंने ईएनजीओ में 2009 में शुरुआत की थी, ज्वाइन किया था। उस समय वो एक माइनॉरिटी के लिए स्कूल चलाते थे, रिक्शा पुलर्स और ये सब के लिए, छोटे से भद्रक उड़ीसा में जहाँ पे साइक्लोन ये सब आता है। उस लड़के को कोई भी सपोर्ट कहीं नहीं मिलता था, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में तो लोग, बट उसने जब ये स्टार्ट किया, वेबसाइट बनाया और फेसबुक बनाया उस समय, सो नाउ ही इज एक्चुअली गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, plus all the Udiya community across the world support one child for a book or race or anything, school uniform or children's के लिए sweets. Now he is getting support. अब उसका वो सेंटर एक प्रॉपर स्कूल बन गया है। अब वो भद्रक में टीवी रेडियो में पेपर देके ऐड देके वो सपोर्ट नहीं ले सकता था, जो बाहर बैठे लोगों को उसने वेबसाइट्स के माध्यम से स्कूल चलोए हम वीडियो दिखा के लिया, और नाउ एक्चुअल 4 लोगों का सेंटर अब वो स्कूल बन गया है। और जितने भी बैंगलोर या हैदराबाद में आईटी ओरिएंटेड जो लोग काम करते हैं, दे एक्चुअली सपोर्ट। सो आईटी आपका वहाँ पे मदद करेगा, आईटी आपके लिए कोई आपको फंडिंग नहीं दिलाएगा। सर, फंडिंग का हमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको सपोर्ट करेगा कि आप कैसे आगे आप काम करो। इट्स अ टूल। इट्स ओके। मेरा नाम रामनिवास है, मैं राजस्थान बैरफुट कॉलेज से। आपने एक बात बताई कि ये एनजीओ के अगर उसमें सूचना देते हैं आय खर्च का विवरण देना पड़ेगा, या आपने कहा कि नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो वो किस तरीके से है? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि सारी जानकारी हमारी जैसे जाए वैसे हमारी फाइनेंशियल स्थितियाँ जो है वो भी जाए तो अच्छा ही है। तो आपकी जो तुलोनिया की वेबसाइट है, आप उसमें क्या क्या करते हो? उसमें हमारे सारे जो गांव के अलग अलग करीब 15-16 तरीके की ग्रामीण विकास की गतिविधियां करते हैं, उन सब के बारे में जानकारी कि जितने भी लोग बैरफुट लोग जो सोलर इंजीनियर की सीख रही है, महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है पर वो इंजीनियरिंग सीख रही है, तो सारी बात उसमें डाली हुई, कैसे सीखती है, क्या कितने दिन का कोर्स होता है, कैसे वो करके अपना गाँव में जाके सोलर का काम कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, और अलग अलग जो भी हमारे काम चल रहे हैं, पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो भी उसमें डाला हुआ है। ये नीरजाल के लिए यहाँ ललिता जी आए हुए हैं, उसमें नीरजाल जो पानी की वाटर केमिकल टेस्ट की सारी जानकारी जो करते हैं
वो सारी जानकारियों को, हमारे पानी के आसपास क्या स्थितियां हैं वो सारे उसमें निर्जल.com में डालते हैं, ताकि वो लोगों को, सरकार को भी पता लगे कि हमारे यहाँ पानी की स्थिति क्या है, और लोगों को भी पता लगे तो उस पर कुछ एक्शन करने में उनको मदद मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनमें डाल रखी है। साथ ही आय खर्च का विवरण भी डाला हुआ है, क्योंकि वो लोगों को जानने का हक है। हाँ, तो यही ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर ट्रांसपेरेंट, तो जो भी आपको सपोर्ट करेगा वो आपकी ट्रांसपेरेंसी देखेगा कि यार हाँ, ये सब कुछ तो इसका ओपन है, लेट हिम सपोर्ट। वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फायदेमंद होता है दूर के हिसाब से। हाँ। Hi, I'm Abhinav. यस। So अभी I'm working with an organization called People for Parity. हम लोग gender sensitization और female oriented gender based violence पे काम करते हैं. So I'm managing the social media for that. So managing Facebook is not a very tough task, but for me the problem which I was facing was कि while making a website, what platform should we use? So I'm comfortable with using WordPress.org या फिर, but मेरे friends कहते हैं कि WordPress is having a very blog oriented approach. So I'm not very sure कि कैसे next process पे ले जाए इस step को, कि is it a technical thing or is it more of like, you know, learning as you go? सी वी फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे पास तकरीबन 2000 प्लस वेबसाइट्स हैं, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन वर्डप्रेस, एंड वी आर वर्किंग ऑन वर्डप्रेस सिंस 2.4 or 5 version. You know, it was just started of WordPress, and we struggled a lot because of its open source. So there are too much, you know, possibilities of hacking and security, and as far as log is concerned, it's really create too much tables in database and all. But the benefit of WordPress is interactiveness and the easiness. You know, even a non-technical people can use them. मैं लोगों को जो ट्रेनिंग देता हूँ, एक्चुअल ट्रेनिंग यही देता हूँ कि वो अपना इन्फॉर्मेशन, सपोज ये वर्कशॉप आज उन्होंने करी, जैसे ये बताएं गांव में महिलाओं का हमने प्रशिक्षण दिया, अब उसको ये फ़ोटो खींच के उसका वीडियो छोटा सा बना के और वो अपनी वेबसाइट पे तुरंत चढ़ा सकें और शेयर कर सकें हज़ारों फेसबुक मेंबर्स पे। सो वो वर्डप्रेस पे ही पॉसिबल है रादर देन एनी अदर फ्रेमवर्क, बिकॉज दिस इज़ आफ्टर जीमेल या आफ्टर ये दिस इज़ द ईजिएस्ट वन इन टर्म्स ऑफ वेब। तो थोड़ा सा तो मेंटेनेंस मांगता है इफ़ यू हैव टू मच websites. If you have one or two, so I don't think so it's too much. Is it easy to incorporate, मतलब अगर जैसे donations वगैरह के लिए या फिर कोई? Yes, it is very much easy. You can even go for the shopping e-commerce website. We have already done this because it's very much useful. It's सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला CMS है वर्ल्ड में ये। Hi, I'm working for Consumer Voice. Yes. I want to know. Where? I'm here. Sorry. I want to know ये लाइट बंद करो। what are the techniques which we can use to attract international funders? क्योंकि वेबसाइट बना ली, वेबसाइट आ गई, लाइव हो गई, Yes. बहुत से लोगों को पता भी चल गई, पर कैसे दुनिया को पता चलेगी कि ये काम यहाँ भारत में यहाँ बैठ के कर रहे हैं? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे हम उसको, क्या टेक्निक्स हैं कि हम उसको बता सकें कि इस तरह का काम हो रहा है? तो उसके लिए आपको सजेस्ट कीजिए। Can anybody tell me what is the website exactly? 2 लाइन में definition? वेबसाइट क्या है, जो भी मन में आए। Collection of web pages. और कोई? वेबसाइट सभी लोगों को जानकारी का इंटरनेट माध्यम है। ये तो उसका उपयोग हो गया, है क्या? वेबसाइट एक साइट, एक जगह है वेब के ऊपर जो हमारी जगह है। ऑफिस है, ऑफिस वेबसाइट एक ब्रोशोर है। वर्ल्ड वाइड वेब। और किसी को? जी हाँ सर। वेबसाइट आपको एक जगह पर कंसोलिडेटेड आपका विजन, एक्शन, प्रॉब्लम, स्टाफ, होलिस्टिक विश्लेषण नेटवर्किंग के लिए दे देते। डिटेल्ड, यस। वेबसाइट केवल जो प्रेजेंटेशन है। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटेशन है। और Borderless word. Borderless work, very good. Count down this.
मेरा ख्याल में कि ये है वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिकली ब्रॉडकास्टिंग मीडिया. Okay, very good. Website is a such kind of broadcasting in which whole world can be seen easily in the electronic media. वेब में या नेट में हमारी कुछ जगह जिसमें हम कुछ बता सकें. हेलो सर, हमारा एक दोस्त है, उसने अभी नई एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराया. सर, हम कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं? अपने दोस्त क्या सुझाव दे सकते हैं? क्वेश्चंस को क्लियर कर लो फिर आप. एक सिंपल क्वेश्चन देव सर ने पूछा कि वेबसाइट क्या है, और काफी सुंदर उत्तर आए हैं. काफी सारे लोगों और ने किसी उसको को देना है track तो करने की- दीजिए. Yes. हाँ, बोलिए. सबको पता चले ऐसे बोलिए जोर से. हेलो, अभी आप सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से वेबसाइट का बहुत अच्छा बारे में बताया था, बट दैट इज डिजिटली अगर वो कहें तो वो लैंग्वेज बहुत परफेक्ट है. बट अगर हम बात करते हैं एज अ लेमैन लैंग्वेज में, तो वेबसाइट इज़ अ काइंड ऑफ योर वॉइस, जो कि आप एक जगह से बैठ के अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को बहुत सारे लोगों तक एक ही स्थान से बैठ के समझा सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन है. हियर इन फ्रंट. ओके, यस, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन है जो कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, जो उसके डिटेल्स के बारे में. ओके, थैंक यू. काफ़ी सारे व्यूज़ हैं. मैं वेबसाइट को कैसे देखता हूँ मैं बताना चाहूँगा. इंटरनेट की जो एक तरह से बोल सकते हैं, इंटरनेट में करोड़ों वेबसाइट्स हैं, अरबों, ठीक है ना. सो इंटरनेट को अगर हम एक शॉपिंग मॉल मान लें, तो वेबसाइट उसमें एक हमारी दुकान है, ठीक है. और उस शॉप में हम क्या करते हैं, उस शॉप में हम अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करते हैं, बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं ना मॉल वाले. मैं इसमें इसीलिए वो लोकल सदर बाजार मार्केट नहीं बोला. मॉल में सिर्फ वहाँ पे सैंपल रखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये, और टैग लगा देते हैं. तो इसी तरह से इंटरनेट के शॉपिंग मॉल में हमारी एक अपनी खुद की दुकान है, जिसका कि किराया बहुत कम है, जिसका कि एड्रेस वो एक है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता है, जिसको कि डोमेन बोलते हैं. और जगह जो है शॉपिंग मॉल में, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनली खरीदते हैं, उनको जो ओनर नहीं है, किराए पे लेते हैं, उनके लिए जगह छोटी होती है, 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट. इसलिए लोग आज की डेट में बोलते हैं कितना स्पेस देते हो जी, स्पेस की बात आती है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं. तो इसलिए जो आपकी शॉप है उसमें आप किस तरह से डिस्प्ले करते हो और किस तरह से आप वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हो या मार्केट करते हो, ताकि विजिटर्स का अट्रैक्शन ले सको. ये इन्होंने जो पूछा था कि कैसे हम वेबसाइट बना ली, हमने दुकान भी ले ली, शॉपिंग मॉल में सब कुछ ले लिया, अब हम कैसे विजिटर्स को बोलें कि नहीं हाँ हमारे पास ये है. दैट इज अ कैटेगराइजेशन ऑफ योर एक्टिविटीज और उससे रिलेटेड ऑडियंस. जहां पर आपकी, मान लो आपने शॉपिंग मॉल में दुकान बना ली, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हो गए, बहुत अच्छे से स्टोरीज, वीडियोस, एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट. अब आप सपोज इंटरनेट पे बैठ के जब तक लोगों को उस वेबसाइट के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक आपकी वेबसाइट कैसे होगी. और उसके बहुत सारे तरीके हैं. पहला है आज की डेट में जो सबसे बड़ा बूम बोला जाता है सोशल मीडिया का. आप फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया. ट्विटर आज की डेट में ट्वीटिंग बहुत कम लोग करते होंगे, आई डोंट थिंक सो. यहाँ ट्विटर एक ऐड का जरिया है, वो इट्स 140 कैरेक्टर्स में आप अपने एड्स चलाइए, बेचिए, इट्स अ टैगिंग काइंड ऑफ. फेसबुक काफ़ी इजी तरीका है, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी बात को, अपनी स्टोरीज को आप फेसबुक पे आपने एक स्टोरी डाली, बट अब उसका डिटेल्ड के लिए आपने अपना वेबसाइट एड्रेस दिया कि बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप मेरे घर पे आइए या मेरी दुकान में आइए. ठीक है ना. जैसे आप बता सकते हो आप यूरेना क्राफ्ट से हो, है ना, आपने अपना वेबसाइट को कैसे लोगों तक पहुंचाया. कुछ ये काफी पहले हैं, ये आप क्या करते हो बता देना.
वर्क है और बहुत ही छोटा वर्क है। आज से 3 साल पहले मैंने साइट बनवाई थी और उसका इस समय प्रचार जो है पूरी दुनिया में है और दूर दूर से मेरे पास जो है ऑर्डर आते हैं। आजकल मैंने जो है डॉल बनाना थोड़ा कम कर दिया, उसका प्रिंट ही केवल बेचता हूँ। कैसे आपने बिजनेस लिया? आपने बिजनेस लोगों को अपनी वेबसाइट कैसे बताई? क्या माध्यम था? माध्यम यह था कि सर फेसबुक के द्वारा मैंने अपने आप को जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और एसएमएस वाला? नहीं, एसएमएस से नहीं, और अच्छा। ट्वीट से पहुंचाई। ट्वीट? जी यू हाँ। कैन नॉट ट्वीट एटलीस्ट। मैं नहीं कर पाता रोज। वो भी बहुत कम करते हैं सर, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और कोई सक्सेस स्टोरी है ऐसे जिन्होंने यूज किया है? ये डॉल वाले भाई साहब से एक सवाल पूछना है कि ये आपने इसमें कोई ग्रांट लिया था क्या? किसी से कोई ग्रांट वगैरह नहीं है? अच्छा, आपका ये अनुभव और फैला है क्या आपके जिले में या और आसपास के गांव में कि जिनके पास कुछ न कुछ ऐसा स्किल्ड प्रोडक्ट है जैसा आपके पास में है डॉल का, कहीं पॉटरी वाला होगा तो कहीं फूल वाला होगा तो कहीं और अलग अलग जो डिसेंट्रलाइज्ड गांव के पर्यावरण पूर्वक धंधे हैं, फैला क्या वो? आपका अपना फैला, मगर आपका जो प्रयोग है, अनुभव है, हाँ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीज जब तक एक्चुअली ये मैं आपको टू बी क्लैरिफाइंग हिम, ये हमारा कानपुर में एक सेंटर है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का, जिसके सहायता से इनकी वेबसाइट बनी थी फ्री में। ये काम हम लोगों ने हस्तकला वाले लोगों को बुला के भी किया था, इसी तरह का वर्कशॉप्स, और उनको ट्रेनिंग देके इनका वेबसाइट बनवाया था। इनके घर में जाके इनके डॉल्स के फोटो खींच के, इनके डॉल्स का वीडियो प्रोसेस का वीडियो बना के खुद हम लोगों ने कंटेंट, मतलब इनको कंटेंट का मेन होता है कि वेबसाइट क्या है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, वेबसाइट आपकी खाली पड़ी है शॉप, आपको प्रोडक्ट कैसे, तो इनका कंटेंट भी ये एनजीओ ने ही डेवलप किया था और उसको वेबसाइट में कन्वर्ट किया था इस तरह से कुछ कुछ, और ये लास्ट मंथन अवार्ड में आए भी थे। ये बहुत गर्व की बात है वास्तव इन्होंने में। फिर सीखा, ये हमारे ऑफिस में सुबह से शाम तक बैठे रहते थे हमको परेशान करके फ्री में। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। फेसबुक सिखाइए, ट्विटर सिखाइए, इवन मैं ट्वीटिंग नहीं करता मगर अब ये करते हैं, सोचिए 140 कैरेक्टर कितने अच्छा, लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन। अब ये देखिए सब ये अपना सब वेबसाइट में खुद अपडेट करते हैं। अब ये ट्रेड फेयर में गए होंगे, ये अभी की है 27 तारीख की। ताऊरी साहब का कहना ये था कि ये अच्छा एक्सपीरियंस देश भर में क्यों ना जाना repeat हो। चाहिए। तो देव सर, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि 5000 एनजीओ जो बन रहे हैं अभी साइट्स, उन सभी का नेटवर्किंग, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, तो अभी जाते वक्त हर एक ने दूसरे जिले या दूसरे राज्य के किसी से तो पहचान करके जाइएगा। आप अकेले आए, पुणे से आए तो पुणे के ग्रुप में मत बैठिएगा, यूपी से आए तो यूपी के ग्रुप में नहीं, आप खुद नेटवर्किंग करना सीख लीजिए। अभी जो ये कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, उसमें खाना होता है तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग डिनर, नेटवर्किंग लंच, नेटवर्किंग टी, पता चला है? ये बड़े लोग जो है ना, जो बड़े लोग सब नेटवर्किंग करते हैं, तो आप भी करना शुरू कर दीजिए नेटवर्किंग। ये आप खुद के 2-4 लोगों में मत रहिए, दूसरे लोगों में जाके पता कर लीजिए वो क्या कर रहे हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे काफी एग्जाम्पल है, तो उनसे पता कर लीजिए, उनको भी अच्छा लगता है, अपने को भी अपने एरिया में रिप्लिकेटिव मॉडल हम लोग तैयार कर सकते हैं। और कमल तावरी जी यहाँ है, उनके बारे में कहता हूँ मैं कि बहुत सौभाग्य है हमारा, प्लानिंग कमीशन के मेंबर है वो, तो वो जो बात कहते हैं उसमें काफी दम है। तो आप सभी के लिए एक गुरु है, महागुरु है, कि आप वो जो कह रहे हैं कि रिप्लिकेटिव कैसे बना जाए और ऐसे इंसान को हम लोग कैसे रिप्लिकेट करें अपने सक्सेस स्टोरीज को, इसके लिए वो कह रहे थे। और कोई सक्सेस स्टोरी या आपको कुछ बोलना है आपके एनजीओस के बारे में? जो इनके सवाल का था कि क्या हम बना सकते हैं, कैसे। सर मैं पूछ रहा था कि हमारा एक साथी है जिसने नई नई एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो वेबसाइट बनाई जाती है उस पर अगर हमारा साथी एनजीओ की वेबसाइट बनाए तो उसका क्या चार्जेज होगा और किस तरीका से हम बना सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, उस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा था। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप एनजीओ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है जी। ये वेबसाइट है जो आपको ब्रोशर मिला होगा जी, वो PIRENGO.org, उसमें रजिस्टर नाउ पे आप जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, रजिस्टर कर लेंगे, आपको मेल आएगा, आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत है। कॉस्ट का जो भी है, इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। आपको इसमें हम आपको
.org डोमेन देते हैं आपके वेबसाइट का,